अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आध्यात्म मार्ग में जेम जेम ऊपर जाओ एम लेबर ओछो पड़े। एक બધા જ આન્સરમાં આનું તમને પારાશીસી દેખાશે। એક કે એક વાતો જે આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ થી કરીએ છીએ એમાં લેબર જ ઘટતું જાય અને જેટલો ધર્મ હોય એટલો લેબર મજૂરી વધતી જાય। મહેનત કરો તો પાપ પુણ્ય મળે, મહેનત કશું ના કરો તો મોક્ષ મળે, એવું છે। કારણ કે સંસાર એટલે પાપ પુણ્ય ને, મોક્ષ એટલે પાપે નહીં અને પુણ્ય નહીં, એનું નામ મોક્ષ। મોક્ષ એટલે કઈ જ કરવાનું નહીં ને સંસાર એટલે બધું જ કરવાનું। તે બંનેના કોન્સેપ્ટ જ અલગ છે। શું છે? પણ મોક્ષ એટલે બધું જેમ છે તેમ સમજવું, કરવું નહીં પણ સમજવું, એનું નામ મોક્ષ છે। મુક્તિનો માર્ગ, મુક્તિનો માર્ગ બ્લાઇન્ડ નથી, મુક્તિનો માર્ગ પ્રેક્ટિકલ છે। કેવો છે? પ્રેક્ટિકલ। અને ધર્મનો માર્ગ થિયોરિટિકલ છે। એટલે થિયોરિટિકલ માર્ગમાં કરવાનું હોય, આમાં કરવાનું ના હોય, જાણવાનું અને સમજવાનું હોય। અને એ જાણવું ને સમજવું એ એટલી મોટી શક્તિ છે કે જેમ જેમ તમને અનુભવ થશે એમ ખબર પડશે કે આ માણસ અણસમજણથી જ મજૂરી કરે છે। શું છે? સમજણમાં મજૂરી ના હોય, જરૂરિયાત હોય વ્યવહારની, પણ મજૂરી ના હોય। મારા વ્યવહાર જીવનમાં ખાવા માટે, પીવા માટે, ફેમિલી લાઈફ માટે પૈસાની જરૂર પડે, એ આપણે વ્યવહારથી માની શકીએ છીએ, ખ્યાલ આવી ગયો? અને એના માટે આપણે મહેનત કરવી પણ પડે, શારીરિક મહેનત। પણ જે મહેનત આપણે ધર્મ માટે કરીએ છીએ મુક્તિના આશયથી, એ સમજણ બરાબર નથી। મુક્તિ માટે તો જ્ઞાન અને દર્શનની જરૂર છે, લેબરની જરૂર નથી। અને તમે જુઓ કે આપણા મહાન પુરુષોએ સાધના કોને કીધી? હાથ પગ જોડી આંખો બંધ કરીને જોયા કરવું, સમજવા કરવું, એને સાધના કીધી છે। સમજાય છે? મહાવીર બી જંગલમાં ચાલ્યા ગયા, એને સાધના કીધી। સાધનાનો મતલબ કોઈ ક્રિયા કરવી તે નહીં, આ બધું કીધેલું, આ બધું જીવન આપણે જોયા છે, પણ આપણું ઓબ્ઝર્વેશન નથી। શું નથી? મેં એટલું બધું ઓબ્ઝર્વ કરતા જાઓ, ઘણી બધી વસ્તુઓ તમે ગ્રાસ્પ કરશો એનાલિસિસથી, ઓબ્ઝર્વેશન અને એનાલિસિસથી આ જોઈ શકાય એમ છે। પણ જે આપણે ટ્રેડિશનલ શબ્દો જે સાંભળવા, વાંચવા અને સમજવા ટેવાયેલા છે, એનાથી બિયોન્ડ જવું પડે આપણે। શું છે? લૌકિક જગત જુદું કહે, કારણ કે લૌકિક જગત એ રિલેટિવ સત્ય ઉપર આધારિત છે અને એની અંદર માસ ઓફ પીપલનો એક માહોલ છે। શું છે? એટલે તમે એ વાતાવરણમાં જશો તો સ્વાભાવિક જ છે કે એનો પ્રભાવ આ વગર રહેવાનો નથી, તમારે એનાથી બિયોન્ડ જવું પડશે। સમજાય છે? એનાથી તમારે બિયોન્ડ જવું પડે, એટલે તો તમને ખબર પડશે। એટલે એવી રીતે આ અધ્યાત્મ વિજ્ઞાન છે એ ખરેખર તમારા પુરુષાર્થને બિલકુલ પ્રેક્ટિકલ બનાવે છે। કેવું બનાવે છે? થિયોરિટિકલ પણ નહીં અને મિકેનિકલ પણ નહીં। એટલે તમે દરેક અવસ્થાને જ્ઞાન અને દર્શનના ઉપયોગથી ઓબ્ઝર્વ કરો, એનાલિસિસ કરો અને રિયલાઇઝ કરો, નહીં કે મિકેનિકલ બસ ગમે તે થાય તો વ્યવસ્થિત છે, એવું નહીં। એમાં આપણે કુદરતી રચના કહીએ કે કુદરતી રચના મિકેનિકલ નથી। કુદરતી રચના તમને સમજાવું છું, પણ સામે સમજાવ્યું છે કે કુદરત અને કુદરતી કાનૂન પછી કુદરતી રચના આવે છે।
રેન્ડમ નથી, ઇટ નોટ લાઈક અ વર્ડ. આ આખી પ્રોસેસ છે. કોઈ પણ કુદરતી રચના કુદરત અને કુદરતી કાનૂન વગર ના હોઈ શકે. પણ દર વખતે હું કે ત્રણ શબ્દ બોલવું એ જરૂરી નથી, તમારે સમજવાનું. પણ આપણું જે કુદરતી રચના શબ્દ છે મિકેનિકલ નથી, બિલકુલ પ્રેક્ટિકલ છે. પણ એ તમને પછી દ્રષ્ટિ તમે કઈ રીતે ઉપયોગ કરો છો એના ઉપર આધાર. તમે માત્ર મિકેનિકલ કરી નાખો તો પછી એમાં અમે શું કરીએ? પણ મિકેનિકલ છે એટલે આપણે પૂરું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપ્યું છે. જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાને તો વ્યવસ્થિત કીધું, પણ વ્યવસ્થિતનું એપ્લિકેશન કઈ રીતે સમજવાનું એ નથી કીધું. કે ગમે તે થાય બસ વ્યવસ્થિત છે બધું, આપણા હાથમાં નથી. અને બની ગયા પછી એને વ્યવસ્થિત તરીકે તમે કહી શકો. પણ એ વ્યવસ્થિત શક્તિનું એપ્લિકેશન આ કુદરતમાં કઈ રીતે છે એનું એક્સપ્લેનેશન ના નીકળે, જેને કારણે લોકોને સાયન્ટિફિક ખબર પડવી જોઈએ તે નહીં પડે. એટલે પછી આપણે ત્રણેય વસ્તુ શું કરી? અલગ કરી. કે કુદરત સમજો, કુદરતી કાનૂન સમજો અને એનાથી બનેલી અવસ્થાને કુદરતી રચના સમજો. આનું એક નામ તમારે વ્યવસ્થિત કેવું હોય તો કહી શકો છો. પણ એટલે વ્યવસ્થિત એક સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ છે, એક રેડીમેડ આન્સર નથી. એમ આજે આપણે જે વાત કરી કે ભાઈ આટલા વર્ષોથી તમે ધર્મની અંદર આ બધા શબ્દો સાંભળો છો, આર્થ ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન, ધર્મ ધ્યાન, શુક્લ ધ્યાન, तो बताने हम के धर्म ध्यान है कि धार्मिक क्रिया, आम लोगों को मालूम ही नहीं है कि आखिर आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो भगवान महावीर ने 4 ध्यान बताए, ये ध्यान वो अंदर की दशा है, बाहर की क्रिया नहीं है. हम कहेंगे आरती करेंगे वो धर्म ध्यान है, पूजा करेंगे वो धर्म ध्यान नहीं है, वो धार्मिक क्रिया है. धर्म ध्यान वो दशा है, वो क्रिया नहीं है. आप समझे? कोई भी क्रिया के अंदर आप धर्म ध्यान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं. यानी आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान को मोड़ना, उसका नाम है धर्म ध्यान. हम क्या समझते हैं? धार्मिक क्रिया करना, उसका नाम है धर्म ध्यान. वो शुभाशुभ है, वो पुण्य का उपार्जन करने का मार्ग है. पुण्य. धर्म ध्यान का मतलब होता है आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान को खत्म करना. और आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान को खत्म करने का मतलब है कि हर अवस्था को कुदरती रचना देखना. तो ये धर्म ध्यान का मतलब होता है अज्ञान को नाश करना. क्या बताया? ये धर्म ध्यान है. अज्ञान नहीं रहेगा तो आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान होगा ही नहीं. तो ये धर्म ध्यान है. और इसीलिए ध्यान शब्द है वो क्रिया शब्द, मगर हमने ध्यान तो बोलते तो ध्यान है, धर्म ध्यान, मगर मानते हैं धार्मिक क्रिया. यही होता है क्योंकि मालूम ही नहीं है. हमारा विजन साइंटिफिक नहीं है, थियोरिटिकल है. और आज तक उसी घरेट से हम जी रहे थे. और इसीलिए कोई बात को विज्ञान की दृष्टि से हम सोचने का प्रयास ही नहीं किया. और यही हमारी जो कमजोरी है, और यही हमारी जो कमजोरी है, ये कमजोरी जो होती है वो कमजोरी की वजह से हम ये विज्ञान को समझ नहीं पाए. वास्तव में साइंटिफिक विजन मुक्ति के मार्ग में होना चाहिए. इस साफ दृष्टि धर्म गुरुओं ने अपने जीवन काल दरमियान अपने फॉलोअर्स को या डिसाइपल्स को बताया ही नहीं. सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्म का जो फॉलोअप था वही बताया कि आप इसको फॉलो करो और इस सबको फॉलो करवाओ. इसके आगे जो साइंटिफिक विजन था उसकी बात ही नहीं हुई. हालांकि अगर फॉलोअर्स को नहीं बताना है तो ठीक है, डिसाइपल्स को तो बताना चाहिए पहले, नहीं तो परंपरा ही गलत होगी. परंपरा ही गलत होगी.
शिष्य को बताना चाहिए, भले अनुयायियों को न बताए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आपने जो क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन की, आर्त ध्यान, धर्म ध्यान, रुद्र ध्यान और शुक्ल ध्यान की, आपने जो उसको विजन का प्रश्न बताया, तो एक उससे क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गई। नहीं तो पहले क्या होता था, ये ध्यान के साथ में क्रोध, मान, माया, लोभ, वो शब्द भी जुड़े रहते थे, और उससे क्या होता था कि ये जो चारों शब्द से लोग इतने लोडेड रहते थे, व्यवहार में तो जो लेके आए वो निकलने वाला ही है, उसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ये शब्द जब उसके ध्यान के साथ रिलेटेड थे नहीं, वो जब पता नहीं था तो डिमार्केशन नहीं पढ़ पाता था। तो ये इंपॉर्टेंस क्रोध, मान, माया, लोभ का ही रहता था। जबकि जब पुरुषार्थ में आपके पास प्रॉपर विजन है तो फिर ये इसका इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा नहीं, उसका बेस निकल गया पूरा, और लोग को सही में एक पूरा विजन में मुक्तता की फ्रीडम मिली। तो ये क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन इससे बहुत ही क्लियर हुआ। और इसीलिए कहा न कि जैसे जैसे अगर धार्मिक क्रिया ही धर्म ध्यान है, ऐसा होता तो साधु को फिर पूजा और आरती की क्यों मना किया? जैन साधु आरती नहीं करते और पूजा नहीं करते, क्यों? अगर वो धर्म ध्यान है तो करना ही चाहिए उनको। तो ये मुक्ति का मार्ग ही नहीं था, पाप करने का मार्ग था। मगर ये क्लैरिफिकेशन नहीं किया। क्या नहीं किया? आप समझे? हर बात में टैली तो होता ही है, मगर लोग इसको प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। आपने अभी जो बताया कि कुदरती रचना, कुदरत और कुदरती कानून कोई लक्ष्य में रख के फिर उसे देखना है, तो आप एक दो इलस्ट्रेशन के साथ समझाइए ये कैसे देखनी चाहिए। कोई भी मतलब 2-3 इलस्ट्रेशन अलग अलग दीजिए, तो हमको पता चलेगा कि जीवन में कैसे उसका उपयोग होता है। कोई भी अवस्था होती है, वो अवस्था को कुदरती रचना का देखने का पहला मतलब है ये अवस्था हमने बनाई नहीं है, फर्स्ट कुदरत ने बनाई, उसका मतलब कुदरती रचना। अभी कुदरत कैसे बनाती है, ये संजोग कुदरत ने कैसे बनाया? क्योंकि 6 तत्वों की सहाय से बनाया। कोई भी अवस्था जन्म से मौत तक की 6 तत्वों के अलावा होती नहीं है। वो मैंने पहला सिद्ध कर दिया है, तो वो दूसरी बार दोबारा सिद्ध नहीं करूंगा। तो पहले कुदरत तो आ गया, 6 तत्व मतलब। अब ये 6 तत्व की अवस्था कैसे बनेगी, उसके लिए कुदरती कानून के बिना अवस्था के 6 तत्व तो है, मगर कानून के बिना काम कैसे करेगा? समझ में आया? तो कुदरत और कुदरती कानून से जो अवस्था बनती है, इसको कहते हैं कुदरती रचना। तो हमको कुदरती रचना ही देखना है, मालूम होना चाहिए कुदरत और कुदरती कानून से बनी है, बस। यानी कोई इसका क्रिएटर नहीं है। यानी हम कोई भी क्रिया में कर्ता भाव हमारा और सामने वाले के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी अवस्था के अंदर मन वचन का या साधनों का हम या दूसरे व्यक्ति का मालिकी भाव नहीं होना चाहिए। कुदरती रचना का मतलब न मालिकी है न करता है, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, कुदरती रचना देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा। नहीं समझ में आया? समझ में आया क्या? नहीं। कुदरती रचना का मतलब क्या हुआ? जो भी होता है क्या होता है? सही होता है। नहीं, सही होता है नहीं, आप करने वाले नहीं हो। नहीं, सामने आपके लिए उदय कर्म है, प्रॉफिट एंड लॉस वो आपका टाइटल है। कुदरत तो रिजल्ट देती है, आप कहते हैं प्रॉफिट और कुदरत कहते हैं मैं रिजल्ट देता हूं, तुम कहते हैं पाप और कुदरत रिजल्ट देती है, तुम कहते हो सुख और, ये तो तुम्हारा टाइटल है। कुदरत का टाइटल, कुदरत तो सिर्फ एग्जाम का। और इसीलिए जैन धर्म में जो 8 प्रकार के अघाती कर्म है, जो शरीर की अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है, उसमें वेदनीय कर्म बताया। क्या बताया? वेदनीय कर्म का मतलब क्या है? सफरिंग। अभी सफरिंग में अच्छा बुरा वो तो तुम्हारा टाइटल है।
सुख दुख तुम्हारा टाइटल है, प्रॉफिट लॉस तुम्हारा टाइटल है, कुदरत का है। कुदरत तो एग्जाम के रिजल्ट देते हैं, टाइटल आप लगाते हैं, और टाइटल के आधार से आपका कंफ्यूजन है। जब भी हम ये कुदरती कानून से देखेंगे उस समय समझ में आना चाहिए कि कुदरत और कुदरती कानून इसमें आ गए कुदरती रचना में, और इसीलिए अवस्था को जब कुदरती रचना देख लिया, यानी आपका विजन इस दुनिया में ये अवस्था के लिए परफेक्ट था, और इसीलिए कुदरत ये अवस्था को आपने कुदरती रचना देख लिया, मीन्स आप कुदरत की एग्जाम में पास हो गए। नो ब्लेम, नो क्लेम, नो गेन, नो लॉस। आप शून्य हो गए उस अवस्था में। क्या हो गए? शून्य। शून्य का मतलब प्रॉफिट भी नहीं और लॉस भी नहीं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा बताइए ना। नेक्स्ट बर्थ में क्या मिलेगा? कुछ नहीं, और कुछ नहीं लेना है, वही तो मोक्ष है। लेना देना है, मतलब क्या है? वो संसार। सिंपल बात तो है। स्वामी जी जैसे उदाहरण के तरफ अपने ऑफिस में कुछ काम किसी को सौंपा, ठीक है, सामने वाले ने अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं किया, तो डिस्चार्ज में इरिटेशन आ जाता है, ठीक है, कि इनको इतना समझाया उसके बावजूद ये काम ढंग से नहीं हुआ, अपने पास टाइम शॉर्टेज है, इरिटेशन हो जाता है, क्रोध हो जाता है। तो वो जो डे टू डे लाइफ में जो इस टाइप के जो सिचुएशंस बनती है, तो उसमें ये कुदरती कानून सामने वाले को देख के अपना जो डिस्चार्ज में सब जो निकल रहा है उसको कैसे हम उसको वो कर सकते हैं? डिटेलिंग में जाने का है नहीं, कुदरती रचना ही देखना है। आप जब डिटेलिंग में जाओगे, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही है, वो तो बराबर है, वो नहीं देखना है। पर जैसी कुदरती रचना हम लोग खाली बोल दी है, तो उसे आपने सही बताया कि उसमें देखना चाहिए कि भाई कुदरत है, कुदरती कानून के हिसाब से ऐसा, तो वो कैसे डे टू डे लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं? विजन में रखना है ना। एक फिजिकल क्रिया थोड़ी है, आपके विजन में रखना चाहिए कि कोई भी अवस्था 6 तत्व के बिना नहीं हो सकती है, ठीक है। अभी आपको 1 बार 2 बार 10 बार आपने समझ लिया, ठीक है, फिर आप लाख बार देखेंगे तो फिर 6 तत्व बार होगा, तो हर बार बोलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, कन्फर्म हो गया है, फिर तो विजन में रहेगा ना कि ये अवस्था 6 तत्व से बाहर नहीं है। आप 10 बार चेक कर लो, 20 बार चेक कर लो, फिर बाद में समझ में आ जाएगा कि बाकी की करोड़ों अवस्था भी क्या है, 6 तत्वों से ही है ना जी। तो बाकी सब जगह याद रखने की जरूरत है, विजन में रहना चाहिए कि ये अवस्था 6 तत्वों से बनी है, दैट्स इट। 6 तत्वों से बनी है और सामने वाला कुछ करता नहीं है, हमारे उदय कर्म 6 तत्व है और दूसरा कुदरती कानून आ गया, फिर सामने वाला और हमारा बात ही नहीं रहा है ना। नो डिविजन एट ऑल। एक सामटा 50 व्यक्ति करता है तो भी कुदरती रचना है, और 2 करता है तो भी, और अकेला करता है तो भी कुदरती रचना है, उसमें संख्या का प्रश्न ही नहीं है। ये मनवचन काया भी कुदरती रचना है। अगर ये मनवचन 2 व्यक्ति के साथ काम करता है तो भी कुदरती रचना, 100 व्यक्ति के साथ करता है तो भी कुदरती रचना। कुदरती रचना में तो कॉमन हो गया है, इसमें संख्या का शब्द नहीं है। ये शरीर बिल्कुल सो गया है और अंदर सपना देखता है तो भी कुदरती रचना, उसमें कोई संख्या क्रिया का सब्जेक्ट जो कुछ भी होता है, रिलेटिव फॉर्म में जो कुछ भी होता है वो कुदरती रचना है। इसको भी कुदरती रचना, ये जो रिएक्ट किया वो भी, इसने जो किया वो भी कुदरती रचना, सामने वाले ने जो किया वो भी कुदरती, सब कुछ दोनों चीज साथ में देखना चाहिए, सब कुछ कुदरती रचना, यानी नो डिवीजन। मैंने कहा ना, हमारा तुम्हारा ऐसा देखने की जरूरत नहीं है। जो भी बना, चाहे सिंगल फॉर्म में बना वो भी कुदरती रचना, चाहे 2 व्यक्तियों से कोई अवस्था बनी वो भी कुदरती रचना, चाहे 10 व्यक्तियों से मिलकर अवस्था बनी वो भी कुदरती रचना, चाहे 100 व्यक्तियों से मिलकर अवस्था बनी वो भी कुदरती रचना। कुदरती रचना का मतलब संख्या का इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी जिस समय जहाँ हुआ वो क्या है, कुदरती रचना। इसमें कोई डिवीजन बनाने की जरूरत नहीं है।